Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great God and great Bible, let us start the today's session. In the last session, we have done the study of the simple harmonic oscillator, and we have derived displacement. What we have derived? Displacement, velocity, acceleration, maximum displacement, maximum velocity, maximum acceleration. Am I right or wrong? Am I right or wrong? What is the formula for displacement? X is equal to R sine omega t plus theta. Please comment down. Okay. What is this X? Displacement. R amplitude. And amplitude is also called a maximum displacement. Okay. Okay. So this is the formula for displacement. What is the maximum displacement? What is the maximum displacement? R. Okay. What's the maximum displacement? X maximum is equal to R. X maximum is equal to R. This is also called amplitude. It is also called amplitude. I am just revising the last class. Okay. In just 2 or 3 minutes. Okay. Okay. What is the maximum velocity? What is the maximum velocity? Okay, this is x maximum is equal to r at what position? At mean position or at extreme position? At the extreme position. At the extreme. Extreme position are the points where displacement is maximum. Where displacement is a maximum. At the mean position displacement is a 0. चला ही नहीं हो, वहीं पे खड़ा. और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. For example, this is my mean position. What is my displacement? 0. Now that is the extreme position. Let us say this time. This is the maximum displacement. So this is extreme point. One extreme point, another extreme point is this one. So at this point displacement is maximum. This pointer displacement is 0. At this plane displacement is a maximum. Okay. Like this. This is x is equal to 0, mean position. These are the extreme points. These are the extreme points. Extreme points. Extreme points. And at the extreme point, displacement is maximum. Displacement is a maximum. Which x is equal to x maximum, and that is equal to r. That is equal to r. Similarly, on this side also, this becomes x equal to x maximum, and then become r amplitude. This is called the mean position. At the mean position, displacement is 0. At the extreme position, displacement is a maximum. What is maximum displacement? X maximum is equal to r, and that is called amplitude. That is called amplitude. This is also called amplitude. This is also called amplitude. Now tell me, what is the maximum velocity? Omega. Yes. V maximum is equal to omega. Omega. At the extreme position, velocity is 0. Velocity is 0 at endpoints. These are also called endpoints. Endpoints पे क्या होता है? कोई भी पेंडुलम या ऑसिलेटर रुकता है एक बार, रुक के फिर आता है. ऐसे होता है ना? चला, रुका, फिर रुका, ऐसे होता है ना? So it means at this point velocity is 0. Velocity is 0. So where the velocity is maximum? At the center. At the center से बहुत तेज हो गया. Center means mean. And what about the acceleration? Acceleration is equal to, maximum acceleration is equal to omega square r in magnitude. Omega square r at extreme position. At extreme. At extreme. And out. And out. No. तो आगे घर बढ़े थे वो मैग्नीट्यूड ले लिया उसने, मैग्नीट्यूड ले लिया. ठीक है. वैसे क्या होता है? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्या होता है? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. when x become x maximum, a becomes a maximum. ऐसे होता ना? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये क्वेश्चन क्या बताती है? मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, बिकॉज ये बन गया a इज इक्वल टू माइनस x. this equation tells us that this equation shows that motion is a simple harmonic motion. Acceleration is proportional to negative of distance. Okay.
ठीक है। जब जब x क्या बन जाएगा, जब x r बन जाएगा तब a क्या बन जाएगा, a मैक्सिमम। a क्या बन जाएगा, a मैक्सिमम। a इज इक्वल टू a। तो वहां से आता है a मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, a बन गया a क्या बन गया, a मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r। माइनस छोड़ देते हैं तो नहीं। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, potential energy and total energy. Total energy will be the sum of kinetic energy plus now let us come to this point, come to this diagram. At the extreme point velocity is 0. So kinetic energy will also be equal to, why? Because the kinetic energy is the formula, kinetic energy is equal to half mv square. Kinetic energy is equal to kinetic energy इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर v जीरो है, v जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट, v जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट, then this becomes kinetic energy becomes, any doubt? Any doubt? It means at extreme points kinetic energy is 0. Now we will prove this. Prove this by mathematical derivation. Should I start? करूँ मैं इसको? Now we will prove this कि kinetic energy is 0 at extreme position. At extreme position, what is the value of displacement? R. X क्या बन जाता है? R. At extreme points x क्या बन जाता है, x maximum. X becomes x maximum and x maximum becomes r. ठीक है, now let us do expression for the kinetic energy. Kinetic energy of बेटा हिंदी वालों को समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हिंदी वालों ऑडियंस, बेटा पीछे क्यों बैठे, आ गए निरंजन सिन्हा, बेटा आगे आओ, यहाँ पे चेस डाली। मैम आशीष माता ही आप ही, आपके साथ आप ही बेटा आगे आओ यहाँ पे प्लीज बेंचेस आर टोटली वेकेट, प्लीज कम। सारा दामा आप ही आगे आओ। यू कैन सिट विद विकास यादव इन द फर्स्ट। समझ आ रहा? माई वॉइस इज ऑडिबल? आवाज की तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? आवाज तो हाँ जी, करें स्टार्ट। ठीक है, लेट अस से K इज द किनेटिक एनर्जी ऑफ, समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? आर इन दैट सेशन और नॉट? लेट अस से लेट K इज किनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनी डाउट? आप देखना, आप ही सारा आर्टिकल करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मेरे को बताते जाओगे, मैं करता जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही होगा और ऐसे ही होगा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे ही होगा। ठीक है, यू विल टेल मी, आई विल फॉलो दैट। ओके, शुड आई स्टार्ट? प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ किनेटिक एनर्जी? What is the formula of kinetic energy? half mv square. So R written half mv square. What's the value of v? देख के बताइए, v क्या होता है? x ये है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो कल हमने किया था ना, क्या था बेटा? v बताना मेरे को। v इज इक्वल टू था r, वहां से देख लो आप, r cos ओमेगा t प्लस थीटा इनटू उसका डेरिवेटिव ले लीजिए ओमेगा। This is the v is equal to omega r cos omega t plus theta. Any doubt? हैं? बेटा इसका डेरिवेटिव द्वारा लिया ओमेगा टी प्लस थीटा का, ओमेगा टी प्लस थीटा का डेरिवेटिव द्वारा लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ओमेगा आया, dt को dt 1, थीटा का 0 हो गया। हल किया तो था हमने। एनी डाउट बेटा? पक्का? इसको जो यूज कीजिए, k क्या बन गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस।
एंड आउट। ओके, एक फॉर्मूला होता बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट हाफ एन ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। आप बता रहे, मैं कर रहा हूँ। एंड आउट बेटा, एंड आउट बेटा मैं आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। बेटा ये किसके इक्वल होता है? जी एक्स के इक्वल ही होता है। दिस इज इक्वल टू एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, इट बिकम एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड आउट वेयर एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस। हाँ जी बच्चों समझ आ रहा है? अनिशुल समझ आ रहा है? आप आगे आ जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत पीछे बैठे हो, दैट विल नॉट बी आई थिंक फाइन। ये कुछ आप सेंटर में बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है बेटा, अप्रूव करें, करें वही चीज प्रूव करें, ये वाली करें। इसके दो केस बनाते हैं, इसके दो केस बनाते हैं। पहले केस में एक्स क्या होगा? 0 फॉर मीन पोजीशन। दूसरे केस में एक्स क्या होगा? आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो निकालते हैं, लेट अस डू। तो कैन यू रब दिस? कैन रब दिस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके 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 ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर kinetic एनर्जी। केस 1 राइट विद द राइट पेन। केस 1 क्या होगा? व्हाट विल बी द केस 1 फॉर मीन पोजीशन? फॉर and at mean position what is the value of x? सारा का नाम, what is the value of x at mean position? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एक्सिस डिस्प्लेसमेंट। एक्सिस चला ही नहीं, घर से निकले ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? फॉर मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। तो यूज व्हाट इज दिस इक्वेशन नंबर 3 और 4? यूज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 becomes क्या बन गई? पुट x इक्वल टू 0 1 हाफ n ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगी? मैक्सिमम। ये क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू एट कहां पे? एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। ठीक है, एट मीन पोजीशन व्हाट द वैल्यू ऑफ k? हाफ m ओमेगा स्क्वायर r। व्हाट इज r? व्हाट इज r? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज r? एम्पलीट्यूड। एंड अनदर नेम ऑफ r is called maximum displacement। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, x मैक्सिमम इज इक्वल टू r, सारा कुछ सेम ही। अब केस सेकंड डिस्कस करते हैं। फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या बोल देते हैं? क्या बोल? एक्सट्रीम पोजीशन और एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होगा? पॉइंट हाँ जी, एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या होगी?
x क्या होगा मैक्सिमम, x क्या होगा मैक्सिमम, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है क्या होती है और फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स x becomes x maximum, x become x maximum and that becomes using 3 2 क्या आंसर आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कितना आंसर आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसल, कितना आंसर आया तो जो हमने कहा था प्रूव कर दिया ना। सो k is 0 at this point and this point. K is 0, k is 0, k is 0 at extreme point. Any doubt? International audience, समझ आया? Are you getting this? Getting this? At the mean points, mean position x is 0, so this is expression, and this is the maximum value of kinetic energy. And at the end points, extreme points, x become x maximum and that become r, so kinetic energy is 0. Kinetic energy क्या होती है 0, वैसे भी 0 ही होती है ना, क्योंकि velocity क्या होती है 0. velocity 0 मतलब हाफ mv स्क्वायर, v 0 तो v का स्क्वायर v 0 सारा। अभी हमने kinetic energy निकाली है ना, अभी हम क्या निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अस डू अनदर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। Please write it then I will. Are you getting this? What's the value of a kinetic energy at center point? Maximum. Center पे what's the value of a kinetic energy at center point at equilibrium position? It has three names: center point, mean position, and equilibrium position. It's a maximum value. It is a maximum value. And at extreme points, it's a minimum value. It's a minimum value. And what's the minimum value? 0. Minimum value is a. Why are we late? You are not attending the lecture, I think, through the last couple of days. No, your name is Terry? Yeah, Terry is. Let us do article for potential energy of SHL. Potential energy of SHL. Okay. Let us say use the symbol. What's the formula for the restoring force? Restoring force F is equal to minus Kx. F is equal to minus Kx. F is equal to minus Kx. And restoring force is always acting towards the mean position or away from the mean position. ये restoring force किस तरफ लगती है? mean position की तरफ लगती है या उससे away लगती है? It is acting towards the mean position. It is acting towards the mean position. मान लीजिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है. Now I want to displace the object from this position to this position. It means I have to apply a force. I have to apply a force. Let us say I have to apply a force F prime. Okay, F prime. I will apply the force F prime in this direction, and a force F, which is called a restoring force, is acting in the opposite direction towards the mean position. And if we know the force, then we can calculate this is the distance. This is the distance that oscillator has traveled from this point to the extreme point. This is the mean position. This is the extreme position. Okay. So what is the work done? Work done is equal to a small amount of work done, and that small amount of work done is equal to force into distance. Force into distance. Let us do. Let us say, let F prime. Please write, let F prime be applied force. Be the applied force for small amount of work done.
for small amount of work done dW. And we know the formula work done. Work done is equal to force into distance. Work done is equal to force into distance. What is work done? dW. What is force? F prime. F prime. Okay. And what is distance? This distance is going to say dx. This distance is a dx for small distance. dx. See, applied force and displacement both are acting in a same direction. Both are acting in a same direction. So what is the angle between f prime and dx? 0. What is the angle between f prime and dx? 0, because both are acting in the same direction. Let us say this is the object. I am applying a force by this direction. So force is acting in this direction and displacement is also acting in this direction. Like this. This is f prime. This is dx. What is the angle between f prime and dx? 0. Because both are acting in the same direction. Along the same line. Along the same line, so I can write cos of 0. Okay, because now we go f prime and dx are acting in same direction. Are acting in a same direction. Okay. And what is the value of cos 0? Cos 0 is 1. Cos 0 is 1. F prime dx. This is dw. Using 1 in 2. Okay. And F prime will be equal to minus of f. Restoring force किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के इक्वल. तभी तो उसको वापस लेके आएगा ना. See, F prime is equal to minus of f. What is F prime? Applied force. What is F? Restoring force. Both will be, magnitude will be equal. Magnitude will be equal. 3. Using 3 into. Using 3 into dW is equal to minus f dx. So I have to place f prime by minus of f. Minus of f. And what is the value of f? F is equal to minus of kx. Given equation number 4. Using 4 in 1. Using 1 in 4. Using 1 in 4. dW is equal to minus of minus kx into dx. Minus minus plus. dW is equal to kx. This is a small amount of work done. This is the small amount of work done. The very next question is why I am calculating the work done. मैं work done क्यों निकाल रहा हूँ? देखो कोई work done तभी होता है जब एनर्जी होती है. Work done is always happened at the cost of energy. So it's a standard formula. W is equal to U. W is equal to and what is U? U is the potential energy. U is the potential energy. If you have the value of इसको मन करना. If you have the value of potential energy, then and only then you can perform the work. अगर आपने खाना खाया है, आपके पास एनर्जी है, तभी आप काम करोगे ना. ये मानते हो कि नहीं मानते हो? If you have eaten something, if you have energy something, then and only then you can perform some amount of work. हिंदी वालों को बता रहा हूँ बेटा, अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने का मतलब आपके पास एनर्जी है, आपके पास यू है, पोटेंशियल एनर्जी है. अगर आपके पास एनर्जी होगी तभी आप काम करोगे ना. मान लीजिए किसी ने कहा कि जाओ आप क्लास लगा के आओ या मेरा ये काम करके आओ, ठीक है, वहाँ से सामान लेके आओ, वो वर्क डन हो गया ना. सामान लाना वर्क डन तभी होता है जब एनर्जी होती है. अगर नो एनर्जी नो वर्क. खाना नहीं खाया तो काम कर लोगे आप. मैं आपको कहूँ कि ये काम कीजिए तो आप कहेंगे सर मैंने तो खाना ही नहीं खाया अभी. तो आप खाना खाओगे, खाना खाने से एनर्जी मिलेगी. इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. So it's a standard relation that work done is always happened at the cost of energy. And what energy? Potential energy. Okay. Okay. So this is a small amount of work done. Now I want to calculate the total amount of work done. What I will do? I will integrate. Integrate. So integrate. That will give me a W. And the limits will be 0 to x. 0 to x. So integrate it. What is dW? Kx dx 0 to x. K is the stiffness constant taken outside. K x dx 0 to x.
and integration of x dx is x square by 2. A x square by 2. What's the answer? Half k x square, that is equal to w. So what is w? What is w? What is w is work done? W is equal to half k x square. W is equal to half k x square, and work done is equal to potential energy, equal to potential energy U. So W is equal to U is equal to half k x. मैंने निकाल लिया, मैंने x निकाल लिया ना. Okay, so this is the U is equal to half k. ठीक है, U is equal to half k x. एंड आउट. अब इसके भी दो केस बनाओ. केस 1 क्या होगा? मीन पोजीशन. केस 2 क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो बनाते हैं केस 1 एट मीन पोजीशन. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x एट मीन पोजीशन? प्लॉटेड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x एट मीन पोजीशन? 0. x is equal to 0 at a mean position. Let us say this question number is 5. Equation 5 becomes U is equal to half k 0 square 0. This means that at the center, this is also called a minimum value. This means at the center U is 0. Potential energy is 0. Potential energy is 0. ये उल्टा हो रहा है. सेंटर पे किनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी. अब एंड पॉइंट्स पे क्या था? एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या था? वेलोसिटी क्या थी? किनेटिक एनर्जी क्या थी? वेलोसिटी 0, किनेटिक एनर्जी 0. वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी. K2 at extreme points. एक्सट्रीम पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x becomes r. What is r? Amplitude. What is r? Amplitude. At extreme point x is equal to x maximum and x maximum is equal to r. ठीक है बेटा, समझ आ रहा? क्या नाम था आपका? राजकुमार, अभिषेक, समझ आ रहा ना? तो इसमें यूज कीजिए. क्वेश्चन 5 becomes तो ये क्या आया है? मैक्सिमम. ये क्या आया है? मैक्सिमम. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यू मैक्सिमम. यू मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर. उसको बोलेंगे यू मिनिमम. यू मिनिमम कितना आ गया? 0. ओके, so it means the potential energy is maximum at extreme points, maximum at extreme points and minimum at the center point, mean position or equilibrium position. Kinetic energy उल्टा है. Kinetic energy is maximum at mean position and 0 at a. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ यार, K is 0. K means kinetic energy and K is maximum at mean position. And what about U? U is maximum at end points and minimum at mean position or equilibrium position. ओके, देखा आपने? इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इंटरचेंज करती है. एनर्जी क्या करती है? इंटरचेंज. Potential is converting into kinetic and kinetic is converting into potential.
बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज टोटल निकालें अब, टोटल क्या होगा, व्हाट इज टोटल एनर्जी, यस टोटल एनर्जी ऑफ SHM वो क्या होगा, E क्या होगा, K प्लस U इज इक्वल टू K प्लस U। तो करिए व्हाट इज K कितना था, हाफ m ओमेगा, क्या था भाई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और U कितना था, हाफ kx स्क्वायर। इसको जोड़िए, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया बताइए, क्या आंसर आया। अच्छा k का मतलब क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, k का मतलब क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k बाय m होता है ना, तो k क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्या बन गई, E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज टोटल एनर्जी, E का टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम, दिस इज टोटल, दिस इज एंड ऑफ द आर्टिकल। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसा बनता है, कितना मार्क्स, ये पूरा आई थिंक 8 मार्क्स में आता है पूरा, इसमें आपको बोलेगा कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड शो इट बाय द ग्राफिकल आल्सो। अब इसका बनाते हैं वो चार्ट, ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, दैट विल बी द एंड। अभी कितना समय बाकी है, अभी 10 मिनट में जाएगा अभी दैट इज मेक अ ग्राफ, ठीक, इस तरफ है एनर्जी, इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ x है, इस तरफ ये x है, ये O है, O क्या है, मीन पोजीशन, ये O क्या है, मीन पोजीशन, ये O क्या है, मीन पोजीशन, और ये है टोटल एनर्जी E, ये E क्या है, टोटल एनर्जी, ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, E इक्वल टू K प्लस U, E इक्वल टू K प्लस U, ये तो कांस्टेंट रहेगी, तो मैंने इसको ऐसे शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेंटर पॉइंट पे क्या जीरो होती है, अच्छा मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है x इक्वल टू प्लस r मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू माइनस r। माइनस का मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट माइनस होगी, इट इज ओनली फॉर दी डायरेक्शन के कारण। अच्छा यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्या जीरो होता है, कौन सी चीज मैक्सिमम होती है, कौन सी मिनिमम होती है, वेलोसिटी कहाँ पे जीरो होती है, सेंटर पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, इसका एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, एक और रुकिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, ये दो एक्सिस है ना, ये एनर्जी एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस है, इस एक्सिस पे x जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, और इस एक्सिस पे एनर्जी जीरो होगी, इस एक्सिस पे ऐसी होगा ना, एनर्जी जीरो होगी, ऐसे होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सॉरी, अगर मुझे एनर्जी को जीरो करना है, अगर मुझे एनर्जी को जीरो करना है, तो मैं इस एक्सिस पे एनर्जी को जीरो करूंगा, तो इस एक्सिस पे एनर्जी को जीरो करूंगा, नीचे वाले पे करूंगा, इस पे करूंगा नीचे वाले। और कौन सी किस पॉइंट पे एनर्जी जीरो होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो होती है ना, तो मैंने बेटा ये पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। मान लीजिए मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना, क्या बना रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो एट द एक्सट्रीम पॉइंट, और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सेंटर पे, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट में मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, ये होगी, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकती, ये तो टोटल है, इसके ऊपर जा ही नहीं सकती, तो एक पॉइंट ये होगी, इन तीनों को मिला दो, मिला दो, ये किसका ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी, किसका ग्राफ हो गया, K का ग्राफ, K का ग्राफ है, K काइनेटिक एनर्जी का, समझ आया, व्हाट इज आई गेट इट। नाउ लेट अस कम टू द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है,
कहाँ पे मैक्सिमम होती है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ तो 0 होगी, मैक्सिमम यहाँ पे होगी। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा लिया। और मिनिमम कहाँ पे होती है? सेंटर पे 0। तो ए, ये किसका ग्राफ हो गया? किसका ग्राफ हो गया? ये यू का हो गया। बस ये खाली होगी, बल्कि बन के ग्राफ, इसको मिला दीजिए। तो दिस इज द ग्राफ। देखो टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। सेंटर पे क्या मैक्सिमम है? किनेटिक एनर्जी। तो देखो किनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे जा रहा है। मिनिमम कहाँ पे है? 3 पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है? सेंटर पे। और मिनिमम कहाँ पे है? एंड पॉइंट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द, खत्म हो गया सर। तो दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल आल्सो। ठीक है। अगर आपने ये पॉइंट निकाले, ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे? दोनों एनर्जी को क्या कर दो? इक्वल। दोनों एनर्जी को क्या कर दो? इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? इक्वल। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी? इक्वल। K इज इक्वल टू U होगा। K इज इक्वल टू U, K इज इक्वल टू इस पॉइंट पे। अगर आप K इज इक्वल टू U करोगे तो वहां से आपको x की वैल्यू आएगी, और वो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी जब आप K इज इक्वल टू U करोगे ना, K इज इक्वल टू U करोगे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ K? K की वैल्यू कितनी है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो व्हाट इज वैल्यू U? हाफ k स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r बाय रूट 2। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू प्लस r बाय रूट 2। ये कौन सा पॉइंट हो गया? x इज इक्वल टू माइनस r बाय 2। इस पॉइंट्स पे क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? सेम। किनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। कहीं ना कहीं तो सेम होगी ना? कहाँ पे सेम होगी? जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द पॉइंट्स वेयर आर इंटरसेक्टिंग K and U, that points have the equal energy of kinetic energy and potential. अभिषेक समझ आया? हिंदी वालों को समझ आया? इंटरेस्टेड ऑडियंस, आर यू गेटिंग दिस? So see, this is the graph of K and this is the graph of U. K is so this is the graph of K, this is the graph of U. K is 0 at the extreme point and maximum at the midpoint, and U is max. Potential energy is maximum at the end points and minimum at the center point. So I think that is all about the simple harmonic oscillator. Tomorrow we will do a new article for this. So thank you for being with us. आपने पेशेंसली सुना, अच्छा लगा। तो कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।